Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay students, now it's your EVS class. Alright, so today we will read class 4th chapter 3rd. As you can see here students, class 4th chapter 3rd, a day with Nandu. Okay, Nandu के साथ एक दिन. Alright, and student, it's a video third of this chapter. Okay, it's a video third students, video third of this chapter. So let's start. The animal which is riding. Student, it's a page number 27. Okay, page number 27 from we have to start today. द एनिमल विच इज़ राइडिंग. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो सवारी कर रहे हैं. ओके, तो अभी हम यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हैं. एज यू कैन सी, ओके, इग्रेट इज़ राइडिंग ऑन द बफेलो. ओके, तो इग्रेट जो है सफ़ेद बगुला जिसे हम कहते हैं, वो बफेलो की पीठ पर राइड कर रहा है, बैठा हुआ है. ओके, सो वी कैन राइट हियर it's a egret. So write down the animal which is riding. So write egret. Okay, E-G-R-E-T, egret. Alright students. And sometimes students, sparrow is also riding on the buffaloes or some animals. Okay, so write down sparrow. S-P-A-R-R-O-W, sparrow. Okay, the animal which is riding, egret or sparrow. All right, now next, the animal which gives the ride. Now अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा एनिमल है जो राइड देता है इग्रेट को या स्पैरो को या कुछ ऐसी बर्ड्स को. ओके, तो यहाँ पर तो कौन दे रहा है स्टूडेंट्स? यस, बफेलो. ओके, सो बफेलो गिव्स द राइड, मीन्स कि सवारी देता हुआ जानवर कौन है? बफेलो है. सो राइट डाउन B-U-F-F-A-L-O. Okay, buffalo gives, G-I-V-E-S, buffalo gives the ride. All right, so the animals which gives the ride, buffalo gives the ride. Now next question students, which animals do we use for riding? All right, which animals do we use for riding? कौन से जानवर को हम सवारी के काम में लाते हैं, राइडिंग के काम में लाते हैं. मीन्स ऐसे जानवर हमें बताने हैं जिनका उपयोग हम सवारी के लिए करते हैं. ओके, तो ऐसे और जानवरों के नाम लिखिए जिन्हें हम सवारी में प्रयोग करते हैं. सो एज यू नो स्टूडेंट्स, सो मेनी एनिमल्स, okay, we use for riding them, like horse, elephant, camel, etc. Okay, so write down horse, H-O-R-S-E, horse. Second, elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. And camel, C-A-M-E-L, camel, etc. Okay, we use for riding. Now next question, which animals do we use for carrying loads? Okay, carrying loads means students सामान ढोना. ओके, सामान ढोने का काम कौन से जानवर करते हैं? एक जानवर तो ऐसे होता है स्टूडेंट जिन पर हम सवारी करते हैं, ठीक है, जिन पे हम राइड करते हैं. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन पे हम राइड तो नहीं करते बट वो हमारे लोड्स को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं. मीन्स कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं. तो हमें यहाँ पर लिखना है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स. तो आप बताइए. यस, डंकी, पोनीज, एलिफेंट, mules, etc. or sometimes horse also. Okay, so we can use them for carrying loads. All right students, so write down donkey, D-O-N-K-E-Y, donkey. Second, mules. Okay, mules. Ponies. Okay, खच्चर, ponies, टट्टू और खच्चर, mules and ponies. And elephant also use. Okay,
एलिफेंट्स का यूज़ भी बहुत होता है बड़े बड़े पेड़ों के ट्रंक को और बहुत अधिक सामान को ढोने के लिए एलिफेंट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है. ओके, डंकी, म्यूल्स, पोनीज एंड एलिफेंट्स एक्सेट्रा used for carrying loads. Okay, for carrying, CARRYING, carrying loads, LOADS. All right, so donkey, mules, ponies and elephants etc. used for carrying loads. All right. Okay, now next students, next we will read make your own elephant. Okay, आप अपना हाथी बनाओ. Okay, make your own elephant, अपना हाथी खुद बनाओ. अब कैसे हाथी बनाना है, यहाँ पर हमें कुछ हेल्पिंग क्लूज दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हम अपना हाथी बनाएंगे. और वो कैसा शेप आएगा स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, इस टाइप का हमारा एलिफेंट का शेप आएगा. ऑल राइट. Okay, so what we have to do, step by step we will read here. First, copy the drawing of the elephant given on the next page in a bigger size on a thick sheet of paper. All right, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट. ओके, हमें एक हाथी के चित्र को जो कि अगले पृष्ठ पर दिया गया है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हाथी का डायग्राम दिया हुआ है ना. तो हमें इस पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके, ओके, बड़ा करके क्या करना है, एक मोटे कागज पर बनाना है. ओके, कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट. कॉपी मीन्स नकल करिए, बनाइए एलिफेंट्स की ड्राइंग और गिवन ऑन द, जो कि अगले पेज में दी गई है, इन अ बिगर साइज, लेकिन हमें बड़े साइज में बनाना है. ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर. ओके, मोटे कागज पर उसको बनाना है. ऑल राइट, तो हमें क्या करना है, अगेन लिसन, अगले पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ. ऑल राइट, मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट इन द पिक्चर. बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट. अब हमें क्या करना है, जब हमने एक मोटे पेपर पर हाथी का मोटा पेपर लेना है स्टूडेंट्स, हमें बुक्स के या कॉपी के साइज का पेपर नहीं लेना, हमें कार्ड शीट लाइक क्राफ्ट पेपर, ऐसे मोटे पेपर लेना है. ठीक है, तो हमने उस पर क्या कर दिया, एलिफेंट की ड्राइंग बना ली. अब हमें मेक, बनाइए स्मॉल कट्स, छोटे छोटे कट्स बनाने हैं, छोटे छोटे कट्स लाइक डैश डैश. ओके, वेयर इट से, जहाँ पर यह कहता है कट इन द पिक्चर, उस पिक्चर पे जहाँ पे कट लिखा हुआ है. बी केयरफुल, ध्यान रखिए, नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, ये ध्यान रखिए कि शरीर का कोई भाग कट ना हो जाए. ओके, ये ध्यान रखिएगा कि और काट कर अलग नहीं करना है, शरीर के किसी पार्ट को काट कर अलग नहीं करना, तो ये ध्यान रखिएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से इसका पिक्चर देख लेंगे एलिफेंट्स का. तो हमें एक मोटे पेपर पर ऐसे एलिफेंट की ड्राइंग बनानी है और जहाँ जहाँ पर देखिए सीजर बना हुआ है, इट मीन्स की कट. ओके, सीजर बने हुए ना जहाँ पर, उसका मतलब है कट. तो जहाँ पर कट लिखा है वहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा काटना है. ध्यान रखिएगा कि ये अलग नहीं होए. ठीक है, बस इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, ये नहीं करना है कि पूरा यहाँ से कट करो. ठीक है, ये ब्लेंड करना है, इसको हम क्या करेंगे, बाद में बैंड करेंगे. और यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, ऐसे इसकी नोच को कट करना. आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ से कट करके इसको पूरा ही कट कर दें, तो इसका पूरा हेड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है कि इतना कट करिए कि उसको पूरा अलग मत करिए. जहाँ पर रेड मार्क लगा हुआ है यहीं पर आप कट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ओके, नाउ थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स. अब जो डॉटेड लाइन्स दी गई हैं उसे हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे. ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन्स दी गई हैं, तो ये डॉट लाइन्स जो दी हुई हैं यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे. ओके, ना फोल्ड द part with lines. Okay, fold the part with lines. You can see here 4 places here some lines ना. तो इन लाइनों को हमें क्या करना है, फोल्ड करना है. and push them underneath.
ठीक है, और इसको हमने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, फिर हमें इसे नीचे की ओर को, ठीक है, मोड़ना है। मीन्स कि जो धारी वाला हिस्सा है, जो ये लाइन वाला हिस्सा है, इसके हमें अंडरनीथ अंदर की ओर को मोड़ना है। ऑलराइट, तो हमने ये किया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया स्टूडेंट्स? वी कैन से फर्स्ट स्टेप हमने मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट इन द पिक्चर। पहले तो हमने एक पेपर पर, मोटे पेपर पर हमने एलिफेंट की ड्राइंग ड्रॉ करी। देन उसके बाद मेक सम स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट in the picture. Okay, be careful not to cut off the part. And second step, fold along the dotted lines. Okay, and third step, fold the part with dash lines, means ki lines pattern and push them underneath. ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये लाइंस बनी हुई हैं वहाँ से अंडरनीथ अंदर की ओर को उसको पुश करना है, मीन्स उनको फोल्ड करना है। जब हम उसे अंदर की ओर पुश करेंगे तब वो एक एलिफेंट स्ट्रक्चर में आएगा। ओके, कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी टेल को कट करना है। ठीक है, हमें अलग से, अलग पेपर पे हमने, क्योंकि पिक्चर पे तो टेल नहीं बनी हुई है, देखिए हमने अलग से टेल बनाई, ड्रॉ करी। अब इस टेल को हमने काट लिया और जो फोल्ड वाला शेप है इसका बैक साइड ऑफ एलिफेंट, वहाँ पर हमें स्टिक करना है। ओके, नाउ योर एलिफेंट इज रेडी। अब आपका एलिफेंट, बहुत ही प्यारा अच्छा एलिफेंट आपका रेडी हो गया है। ओके, आपका एलिफेंट जैसे ही आप उसकी टेल लगाएंगे तो आपका एलिफेंट रेडी हो गया है। ओके, तो अब देखिए, कलर एंड डेकोरेटेड। अब आपको इसको कलर करना है। ओके, कलर करिए अब आप इसको, एंड डेकोरेटेड, और इसको सजाइए, इसमें हेयर्स लगा देंगे। ठीक है, इस पे आप कुछ क्लॉथिंग भी ऊपर से लगा सकते हैं, क्योंकि हाथी के ऊपर राइड करने के लिए सुंदर सी सीट बनी रहती है ना, हार्नेस टाइप। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट, पुट अप एन एग्जीबिशंस इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। अब आपको क्या करना है, इस हाथी को, ठीक है, अपने साथी के द्वारा जो बनाए गए हाथी हैं उनकी आपको एक प्रदर्शनी लगानी है। ठीक है, मीन्स कि पुट अप एन एग्जीबिशंस इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट, मीन्स कि आपकी क्लास में जितने बच्चों ने एलिफेंट्स बनाए हैं तो आप क्लास में उसको रखेंगे एक जगह पर, दैट यू हैव मेड, आपने भी जो बनाया है उसको भी वहाँ पर रखेंगे। तो इट मीन्स कि अगर आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, नाउ यू हैव गॉट 35 एलिफेंट्स। ओके, सो यू कैन एन एग्जीबिशंस इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर्स एलिफेंट। ओके, तो आप अपनी क्लास में एलिफेंट की एक एग्जीबिशंस, प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, what do they say? Okay, what do they say? What means क्या, they means वे, say means कहते हैं, वे क्या कहते हैं। वे कौन means स्टूडेंट्स? एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स की जुबानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जानवर की एक, हम क्या जानवर कहते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Okay, discuss these narratives sensitively in the class. So look at these pictures, students. You can look these pictures, okay, of some elephants, some animals like snake, bear, horse, okay, monkey, pussy cat, पिजन हेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये एनिमल्स के पिक्चर आप देख सकते हैं। नाउ एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग। पढ़िए और क्या ये जानवर शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मीन्स कि ये जानवर अपने दोस्तों को क्या बातें बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को क्या शेयर कर रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें वो बता रहे हैं। तो आप इन पिक्चर्स को देखिए और इनको पढ़िए। ओके, डिस्कस दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास, और डिस्कस करिए, विचार विमर्श करिए इनके नैरेटिव्स को, इनकी बातों को सेंसिटिवली, संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशील होकर इनकी बातों पर विचार विमर्श करिए इन द क्लास, अपनी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस टाइम यू आर नॉट इन योर क्लासरूम, सो व्हेन वी विल मीट अगेन इन अवर स्कूल, ओके, व्हेन अवर स्कूल विल reopen, then definitely students, in one period we will discuss about these narratives sensitively. Okay, now this time you just read, okay, what the animal says.
फर्स्ट वन स्नेक. सो स्टूडेंट्स व्हाट स्नेक सेज, क्या कहता है स्नेक? ओके, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर. For me, it is only the basket and the snake charmer. Alright? Basket means students टोकरी, जहाँ पे सांपों को रखा जाता है. ठीक है. जो स्नेक चार्मर होता है, स्नेक चार्मर मीन्स सपेरे. ठीक है. जो सपेरे होते हैं वे सांपों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए उनको सांप की एक बास्केट में रख देते हैं. ठीक है. और वे उस बास्केट में ही बंद रहता है. जब सपेरा चाहता है तब उन सांपों को बाहर निकाला जाता है. सो द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव. तो स्नेक कहता है कि टोकरी ही मेरा घर है, टोकरी ही केवल मेरा घर है. एक पिटारी होती है सांप की. ठीक है. टोकरी का उसमें कैप होता है, उसको पिटारी बोलता है. तो यह पिटारी ही अब मेरा घर है. ओके. आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल. तो वो कहता है फॉरगॉटन मीन्स भूल गया हूँ. ठीक है. मैं भूल गया हूँ कि कैसा खुला जंगल होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पिटारी में ही बंद है. तो कहता है मैं तो अब भूल ही गया हूँ कि कैसा खुला जंगल होता है. एंड फ्रेश एयर, फ्रेश मीन्स ताजी, और कैसी ताजी हवा होती है. फॉर मी, मेरे लिए, इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. मेरे लिए तो केवल यह पिटारी है और यह सपेरा है. मीन्स कि उसके ना कोई फ्रेंड्स हैं. ओके. ना उसके कोई कंपेनियन है, साथी है, ना कोई एनिमी है. बस उसके पास सिर्फ दो जने हैं, एक स्नेक चार्मर है और एक बास्केट है. मीन्स कि एक पिटारी और सपेरा ही अब मेरे पास है. तो देखिए स्नेक को कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है कि वह खुला जंगल भूल गया, वह कहीं जा नहीं सकता, उसके कोई साथी नहीं है. ओके. वह खुली हवा में सांस नहीं ले सकता. बस जो भी है उसके पास एक पिटारी, उसका घर और उसका स्नेक चार्मर ही है, उसका सपेरा ही है. ओके. ना बियर क्या कहता है सुनिए. अब देखिए भालू भी परेशान है. ठीक है. वे भालू जो सर्कस में रहते हैं. ठीक है. जंगल के भालू तो बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी तो अपनी लाइफ है. बट ऐसे भालू जो मदारी के पास होते हैं या सर्कस के पास होते हैं, तो वे क्या कहते हैं, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग. ओके. थ्रो रिंग्स ऑफ फायर, you clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. Okay, तो देखिए भालू कितना परेशान है और कहता है कि you see me in circus. आप मुझे सर्कस में देखते हैं, है ना. आपने जब भी भालू देखा होगा सर्कस में या मदारी के पास देखा होगा, है ना. तो क्या करता है वो वहाँ पर, डांसिंग एंड जंपिंग. वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर डांस करता हूँ और कूदता हूँ. थ्रो रिंग्स ऑफ फायर, आग के गोले, रिंग्स ऑफ फायर, आग के गोले से होकर मैं गुजरता हूँ और डांस करता हूँ. यू क्लैप, तब आप ताली बजाते हैं. एंड इंजॉय, और बहुत मज़े करते हैं, खुश होते हैं. डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि दैट आई ऑल्सो इंजॉय ऑल दिस, कि क्या मैं भी ये सब चीज़ इंजॉय करता हूँ, क्या मुझे भी ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है. इफ़ आई डू नॉट डू, ओके, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, दिस आई विल गेट नो फूड, तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे मालिक के द्वारा मुझे भोजन नहीं दिया जाएगा. ओनली गेट अ बीटिंग, मुझे गेट मीन्स प्राप्त होना, ओनली मीन्स केवल, बीटिंग मीन्स मार, तो मुझे केवल मार ही पड़ेगी. तो भालू क्या कहता है, भालू कहता है कि यह मत सोचो कि सर्कस में मैं बहुत खुश हूँ. ओके. नाचो कूदो, आग के गोले से निकलो, और भी न जाने क्या क्या चीज़ें भालू को करनी होती हैं, और अगर वो ना करे तो उसे भूखा रहना पड़ता है और केवल पिटाई मिलती है, केवल मार पड़ती है. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखिए हॉर्स क्या कहता है. ओके. अब हॉर्स भी अपना दर्द बता रहा है, अपना पेन शेयर कर रहा है हॉर्स भी. तो हॉर्स कहता है यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज, डू यू नो हाउ मच पेन गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई होफ्स. ओके. तो स्टूडेंट्स देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि हॉर्स अब बता रहा है. पहले स्नेक ने बताया अपना दर्द, फिर उसके बाद किसने बताया, बेयर ने
बताया। अब कौन बता रहा है? अब बता रहा है हूप्स बता रहा है। हूप्स के दर्द को घोड़ा बता रहा है कि मेरे हूप्स में कितना दर्द होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो वो कहता है यू हैव ओनली सीन, यू मीन्स तुम, ओनली सीन केवल देखते हो, हाउ फास्ट आई रन, कितना तेज मैं दौड़ता हूँ। तो हॉर्स कहता है कि तुमने केवल यह देखा कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, माई शूज, क्या तुमने मेरे शूज देखे होंगे जो हॉर्स पहनते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ मच, कितना अधिक, पेन मीन्स दर्द, कितना अधिक दर्द, आई गेट, मुझे होता है, व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूव्स। ओके, हूव्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स खुर, खुर मीन्स घोड़े के जो तले होते, पैरों के जो तले होते हैं उसको हूव्स बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर हॉर्स शूज को फिक्स किया जाता है, वो परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय उसको बहुत पेन होता है, ताकि वे इसलिए होते ताकि वो ठीक से दौड़ पाए, उसको चोट ना लगे। और जब वो दौड़े तो आपने सुना होगा ना, टक 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 की आवाज़ होती, तो वो जो टक टक की आवाज़ होती है वो हॉर्स शूज के वजह से होती है। ठीक है, तो वो कहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ मच पेन, कितना अधिक दर्द मुझे होता है जब वे मेरे हूफ्स में, मेरे खुर में क्या करते हैं, हॉर्स सूज। हॉर्स सूज क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं जैसे हम सूज पहनते हैं वैसे सूज नहीं होते, बल्कि हॉर्स सूज होते हैं घोड़े के खुर में लगाने वाली यू आकार की, ऐसी होती स्टूडेंट्स वो। ठीक है, यू आकार की क्या होती है, लोहे की या धातु की एक नाल होती है जिसको हॉर्स के उसमें फंसाया जाता है, खुर में, हूस में फंसाया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है क्या आप जानते हैं कि जब मेरे पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं तो मुझे कितना अधिक दर्द होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद मॉन्की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मॉन्की भी बहुत परेशान है। ठीक है, कुछ मॉन्कीज भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वे क्यों दुखी हैं? तो लेट्स रीड, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। ओके, तो वो कहते हैं कि वे हमें नचाते ही रहते हैं, वे हमें हर समय नचाते रहते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू, इवन मीन्स जबकि, इफ यदि, वी डोंट वांट टू हम नहीं भी नाचना चाहते हैं, वे तब भी हमें नचाते रहते हैं। कहाँ पे? सर्कस में या मदारी। ओके, जू में, सर्कस में और मदारी लोग नचाते हैं। वी डोंट वांट टू, हम ऐसा नहीं चाहते, और वी आर इन पेन, और हम दर्द में भी होते हैं, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टोमक। ओके, तब भी वह हमें खाली पेट नचाते रहते हैं। अगर वे नहीं नाचे तो उनको खाना भी नहीं मिलता, मार पड़ती है। ओके, तो वो कह रहे हैं दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू, और वी आर इन पेन, दैट्स टू विद एन एम्प्टी स्टमक। तो वे कह रहे हैं कि वे हमें नचाते रहते हैं, हम दर्द में होते हैं, हम नहीं नाचना चाहते हैं, हम खाली पेट होते हैं, तब भी हमें वे नचाते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब पुसी कैट क्या कह रही है? ओके, लेट्स सी, मियाऊ मियाऊ मियाऊ, MEOW मियाऊ। ओके, MEOW मियाऊ, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब मियाऊ तो बड़ी खुश है, मियाऊ कहती है कि आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। ओके, वो कहती है कि मैं तो केवल, रोम मीन्स घूमती रहती हूँ। ठीक है, रोम मीन्स होता है आवारा घूमना या चारों तरफ घूमते रहना, तो वो एवरीवेयर प्रत्येक जगह। तो वह कहती है मैं चारों ओर हर जगह बस घूम सकती हूँ, घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, और बच्चे मुझे, लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। ओके, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, दे पैट मी, वे मुझे पालते हैं। पैट मीन्स स्टूडेंट्स पालना। ओके, वे मुझे पालते हैं, एंड और ऑल्सो गिव मी मिल्क, और मुझे दूध भी देते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, Gutter go, do you know people especially call out to me to feed me with grain? Okay, gutter go. तो कबूतर अब कहता है गुटरू गो। ओके,
तो वो कहता है डू यू नो, क्या आप जानते हो, पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। ओके, तो कहते हैं विशेष लोग विशेष रूप से मुझे बुलाते हैं फीड मी, खाना खिलाने के लिए, विथ ग्रेन, दाने, दाने यानी गेहूं के दाने और चावल के दाने। कौन खाता है? कबूतर खाता है ना। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा हम लोग कबूतर को दाना खिलाने के लिए गुट्रोगू आ करके बोलते हैं और दाना खिलाते हैं। तो म्याऊ, पुसी कैट और कबूतर बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि हमें तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, पुसी कैट कहती है, हम चारों तरफ घूमते हैं, हमें बच्चे बहुत प्यार करते हैं, वे हमें पालते हैं और दूध भी पिलाते हैं। तब कबूतर कहता है कि क्या आप जानते हो, लोग हमें बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। फीड मी, भोजन कराना। ओके, ग्रेन मीन्स अन्न के दाने, अनाज के दाने। तो वो कहते हैं गुट्रगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। तो वो कहते हैं कि हमें तो बच्चे बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं, दाना चुगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, discuss students. Okay, now we have to discuss on some points. Okay, let's read. You have read what these animals say. Okay, discuss students. आपने पढ़ा कि ये एनिमल क्या कहते हैं, तुमने इन जानवरों की बातों को पढ़ा। Why do you think that some of them are sad? आप क्यों सोचते हो, ऐसा आप क्यों सोचते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि इनमें से कुछ जानवर उदास हैं? तो स्टूडेंट्स वी कैन डिस्कस हियर. ओके, आई विल डिस्कस विथ यू. सो स्टूडेंट्स, एज you know already we have read that what these animals says, like snake, bear, horse, monkey and even pussycat and pigeon also. Okay, so why do you think that some of them are sad? So I think students, as we read about ऐसे snake के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो किसके पास हैं, जो snake charmer के पास हैं, ऐसे snake की हम बात कर रहे हैं. And such sometimes students, horse and bear also very sad. Okay, also very sad because bears, they have to do dance and jump through ring of fire. Okay, and that time all people clap and enjoy, but we can't think, okay, they also enjoy. Okay, because if they will not do like this, so they will get no food, only get up beating. So it's a very very painful moment for them. Okay students. And students, if we will talk about horse, so you have only seen how fast horse run. Okay, but have you seen horse shoes? It's a very painful when horse get horse shoes to their hooves. It's a really very painful. Okay students, so that's why horse and snake and bear very sad. Okay, they are very sad, so it's their painful moment for them. Okay, and students, if we will talk about monkey, okay, so they make us dance and dance. Okay, तो वो क्या करवाते हैं उनसे, वो कहते हैं कि they make us, monkey said that they make us dance and dance. Okay, even if they don't want to, and even they are in pain. Okay, that too with an empty stomach they have to do dance and dance. So it's also a very sad moment and very painful moment for them. All right student, now next point, how do you think they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? How do you think? Okay students, आप क्या सोचते हो कि they are different, क्या वे अलग अलग हैं? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. वे monkey, क्योंकि monkey सब तो नहीं रहते ना entertain करने के लिए, कुछ ही monkey क्या रहते हैं, people को entertain करते हैं, जो सर्कस में होते हैं या फिर मदारी के पास होते हैं. और कुछ monkey क्या हैं, वे तो free होते हैं. वे कहाँ पर रहते हैं? वे जंगल में रहते हैं. Okay students. So students, the monkeys that dance to entertain people,
okay, do not enjoy freedom, and as they are caught, okay, and are used by people for their own benefit, so they feel sad, okay. But the monkeys, if we will talk about the monkeys that are free and live in the forest, are very happy because they do whatever they like and they can go whenever they want. All right students, तो अगर हम बात करें वे मंकी जो एंटरटेन करते हैं पीपल के लिए, तो वे बहुत सैड रहते हैं. बट अगर हम बात करेंगे वे मंकी जो कि फ्री होते हैं, वे बहुत हैप्पी होते हैं बिकॉज उनको जो भी करना होता है, उनको जहाँ भी जाना होता है, वे फ्री होते हैं, वे कहीं भी जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स. यू हैव रेड वर्ड दीज एनिमल्स सेज. व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड? ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली इसको बात करें, इसके आंसर की बात करें, बहुत सारे एनिमल्स जैसे स्नेक है, हॉर्स है, एलिफेंट है, बेयर है, ये सब क्या है, बहुत दुखी होते हैं जिनको कि कोई पालता है, या जो जू या फिर सर्कस में रहते हैं, या स्नेक चार्मर के पास या मदारी के पास रहते हैं, तो वे बहुत दुखी हैं. क्यों हैं? दे आर सैड स्टूडेंट्स बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम एंड यूज दैम फॉर देयर ओनली ओन बेनिफिट्स. ओके, they don't care about animals, okay, because of which they are deprived of freedom. It's a more important कि वे अपनी freedom से क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं. So you can say that they are sad, okay. Who sad? Some of them animals are sad because many people catch them and use them for their own benefits, okay, because of which they are deprived of freedom. All right, now second students, how do you think they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? Okay, how do you think they are different? तो कैसे आपको लगता है कि वे अलग हैं, वे मंकी जो दूसरों को एंटरटेन करने के लिए डांस करते हैं, और वे मंकी जो क्या हैं, फ्री हैं, मीन्स की स्वतंत्र है. तो इसमें क्लियर डिफरेंस है स्टूडेंट्स. द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम, क्योंकि वो तो अपने मालिक की मर्जी से काम करते हैं और वे उनको उनके पास ही कैद में रहना पड़ता है. ओके, एंड क्यों? एज दे आर कॉट एंड आर यूज्ड बाय पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. ओके, सो दे फील सैड. All right, but the monkey that are free and live in the forest are very happy, okay, because they do whatever they like. all right, उनको वो सब पसंद होता है जिसे वो करना चाहते हैं, मीन्स कि हर अपनी पसंद का काम वे करते हैं, अपनी पसंद की जगह पर वे जा सकते हैं, अपनी पसंद से वो सो सकते हैं, अपनी पसंद से वे खा सकते हैं. सो यू कैन से दैट दे डू whatever they like, they can go where whatever they want, they can eat whatever they want. ओके, तो वो जो भी करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं. ओके, now next students, how many legs does this elephant have? ओके, हाउ मैनी, कितनी, लेग्स मीन्स टांगे या पैर, डज द एलिफेंट हैव, एलिफेंट के पास हैं. ओके, कितनी लेग आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है एलिफेंट का, तो आपको काउंट करने हैं कितने लेग एलिफेंट के पास हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल हाउ मैनी लेग्स एलिफेंट हैव. Okay, obviously 4 legs, okay, means 1 2 3 4, but here it's a very confusing to count or to find out how many legs does the elephant have. Okay, so you should try, all right, to count them. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओके, एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल. ट्रबल मीन्स परेशानी. तो जो एलिफेंट हैं वे एक दूसरे की, हेल्प मीन्स मदद करना, ईच अदर एक दूसरे की. हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं जब वे परेशानी में होते हैं. ओके, दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस. ओके, तो दे जॉइन टुगेदर, वे एक साथ जुड़ जाते हैं, वे एक दूसरे का, जॉइन मीन्स साथ देते हैं, टू केयर देखभाल करने के लिए, एंड रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, वे अपने देयर यंग वंस, अपने छोटों के बचाव
के लिए, अपने साथियों के बचाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए वे एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स, और आपको जानना चाहिए हमें भी एनिमल्स की तरह अपने यंग वंस का, अपने साथियों की एक साथ मिलकर उनके साथ हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। They join together to care for and rescue their young ones. Okay, तो जो एलिफेंट्स होते हैं वे परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं, वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान देते हैं और अपने छोटों का बचाव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स, कैसे वे क्यू में चल रहे हैं एक साथ। तो जब भी उनको कोई परेशानी आती है तो वे एक साथ हो लेते हैं और एक साथ रहकर एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और उनको उनका साथ देते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज. Okay students, so this class is over now. Tomorrow I will be back with new chapter, chapter 4, the story of Amrita. Alright, so till then students, take care, bye bye, have a nice day.